Good morning, student, and welcome in today's lecture. Today's lecture is theory of origin of life or life form. Before start evolution of life form, we just discussed some previous points. First one is in this topic the origin of the universe. The conclusions point of the origin of the universe is around 20 billion year old and comprises a huge cluster of the galaxies. Galaxies contain star and clouds of the gases and dust. The origin of universe is explained by Big Bang theory. And third one, according to Big Bang theory, a huge explosions occurred. The universe expanded, temperature came down, and hydrogen helium were formed later. The galaxies were then formed due to the condensations of gases under gravitation. Now, the main points of origin of Earth. The Earth was formed 4.5 billion years back. Initially, the surface was covered with water vapors, methane, carbon dioxide, and ammonia. The ultraviolet rays of the sun broke water into the hydrogen and oxygen. So, main source sky lightning and ultraviolet rays. Hydrogen escape and oxygen combined with NH3 CH4 to form carbon dioxide, water and other gases, also forming ozone layer. Then cooling of water vapors led to the rain which filled the depressions on Earth's surface, forming water bodies. Now theory of origin of life. Theories origin of life की कुछ theories हैं. First point, life appeared 500 millions year after formation of the earth. मतलब अभी इसको कितना टाइम हुआ लाइफ को 500 मिलियंस ईयर. ठीक है. अर्थ कब फॉर्म हुई है 4.5 बिलियंस ईयर बैक. मतलब बहुत समय तक अर्थ में कोई लाइफ नहीं रही है. डिफरेंट थ्योरीज वॉज गिवन टू एक्सप्लेन ओरिजिन ऑफ लाइफ. कई थ्योरी हैं टू एक्सप्लेन करने के. फर्स्ट थ्योरी ऑफ द स्पेशल क्रिएशन. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ये रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू पर ये थ्योरी. एंड टूडेज लेक्चर आई हैव एक्सप्लेन इट. गॉड क्रिएट्स लाइफ बाय द डिवाइन एक्ट ऑफ क्रिएशन. मीन्स गॉड ने इस पूरे यूनिवर्स को, सब चीज़ को गॉड ने क्रिएट किया है. थ्योरी ऑफ पेंसपर्मिया. ठीक है. कॉस्मोजोनिक थ्योरी. पेंसपर्मिया एंड जोइक थ्योरी है वो सेम है. ये थ्योरी क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू अर्ली ग्रीक थिंकर्स, दिस थ्योरी गिवन बाय ग्रीक थिंकर्स, अकॉर्डिंग दैट लाइफ यूनिट ऑफ लाइफ कॉल्ड स्पोर्स और पेंसपर्मिया. ठीक है. जो लाइफ की यूनिट वो सेल ना हो के स्पोर्स हैं, विच केम फ्रॉम आउटर स्पेस, जो कि हमारे आउटर स्पेस से आया. अर्थ में इनका ओरिजिन नहीं हुआ है. एंड डेवलप्ड इनटू अ लिविंग फॉर्म्स, और वो अल्टीमेटली लिविंग फॉर्म्स में डेवलप हो गए. थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम डिकेइंग एंड रोटेटिंग मैटर लाइक स्ट्रॉ मड. इस थ्योरी के अनुसार क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम डिकेइंग एंड rotating matter like straw and eggs. This is called as spontaneous generation. इसके लिए लुइस पास्चर डिसमिस द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन. उन्होंने इसको डिस्कार्ड किया है एंड demonstrated their life came from pre-existing life. According to Louis Pasteur, the life is arise from pre-existing life. पहले से जो जिसमें लाइफ है उसी से नई लाइफ आई है. According to Louis Pasteur, he placed killed yeast in pre-sterilized flask and another flask open to air. He showed that life did not originate in a farmer but new living organisms arose in a later flask. मतलब उन्होंने क्या किया कि जिसमें किल्ड ईस्ट था तो उससे कोई लाइफ जनरेट नहीं हुई, और जो न्यू ऑर्गेनिजम्स आए वो किस फ्लास्क पर आए? जो कि एयर पर ओपन था. सो दिस थ्योरी गिवन बाय लुइस पास्चर. ठीक है. फिर थर्ड आता है थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन और ऑपरॉन
हेल्डन थ्योरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? केमिकल इवोल्यूशन। ये थ्योरी का स्टेटस क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी it is given by Opron and Herden and stated that life originated from pre-existing non-living organic molecules। इन्होंने क्या बताया कि पुराने से जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं वही धीरे धीरे कलेक्ट होकर गैदर्ड होके और लाइफ फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। दिस इज कॉल्ड एज केमिकल इवोल्यूशन। और ये थ्योरी किसने दी है? इट इज़ गिवन बाय ऑपरॉन हेल्डमैन थ्योरी। सो आई थिंक स्टूडेंट this now this term you have already understood. now next point इसके लिए हम लोगों ने एक किसका मिलर एक्सपेरिमेंट्स को भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि मिलर्स एक्सपेरिमेंट, अकॉर्डिंग टू दिस एक्सपेरिमेंट evolution of life form, what is the according to this थ्योरी कि एक उन्होंने फ्लास्क लिया, फ्लास्क में इलेक्ट्रोड लिया, उससे तकरीबन 8000 का टेम्परेचर क्रिएट किया स्पार्क डिस्चार्ज से और उसमें कुछ गैसेस ऑलरेडी फिल कर दी। वो गैसेस क्या थी? जो कि सबसे पहले अर्ली एटमॉस्फेयर में थी। इट वाज CH4 NH3 H2 और H2 और आफ्टर द एक्सपेरिमेंट जो रिजल्ट्स मिले वो रिजल्ट्स में कुछ इसमें ऐसे RNA DNA और कुछ नाइट्रोजनस बेस टाइप के सब्सटेंस फॉर्म हुए, जो किसका रीज़न था? जो किसी ना किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का पार्ट था। ठीक है, तो दिस इज दिस थ्योरी और दिस एक्सपेरिमेंट गिवन बाय मिलर एक्सपेरिमेंट। सो इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म में ये सब थ्योरीज हो गई हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट आर द एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन। व्हाट आर द एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन, कि इवोल्यूशन के एविडेंसेस क्या हैं, क्यों कहा जाता है कि इवोल्यूशन टर्म्स आप रीड कर चुके हो। टाइम के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिजम्स में जो भी चेंजेस आ रहे हैं एडॉप्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग, दिस इज कॉल्ड एज इवोल्यूशन। और सिंपलर ऑर्गेनिजम्स से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स ड्यूरिंग टाइम पीरियड, इसमें टाइम पीरियड इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। तो अब ऐसे कौन से एविडेंसेस हैं जो ये शो करते हैं कि इवोल्यूशन हुआ है? ठीक है, सो देयर आर सम पॉइंट्स गिवन देयर, वी विल एक्सप्लेन वन बाय वन। Evidences that evolution of life form has indeed taken place on earth has come from many quarters। क्या है कि एवोल्यूशंस के जो एविडेंसेस हैं वो बेसिकली मतलब तो कई क्वार्टर्स के बाद मिलते हैं। ये बहुत स्लो प्रोसेस है। फॉसिल्स आर रिमेन ऑफ हार्ड पार्ट्स ऑफ द लाइफ फॉर्म फाउंड्स इन रॉक्स। मतलब फॉसिल्स, सेकेंड एविडेंस क्या है? फॉसिल्स किसका? एवोल्यूशन का। फॉसिल्स क्या होते हैं? एक इट इज़ रिमेन ऑफ हार्ड पार्ट्स ऑफ लाइफ फॉर्म। जो लाइफ फॉर्म है उनके वो पार्ट जो कि हार्ड होते हैं और डिग्रेडिएट नहीं होते हैं, वो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, लाइफ फॉर्म। सो हार्ड पार्ट ऑफ लाइफ फॉर्म found in rocks from sedimented and cross sections of earth crust indicates that arrangement of sedimentations come over and other during the long history of the earth। तो फॉसिल्स किस पे मिल रहे हैं? रॉक्स पर मिल रहे हैं। और रॉक्स का सेडिमेंटेशन क्रॉस सेक्शन देखा जाए तो उसमें सेडिमेंटेशंस मतलब डिफरेंट लेयर्स जो एक के ऊपर बाद एक जो है डिपॉजिट होती जा रही हैं, दिस इज कॉल्ड एट सेडिमेंटेशन। और ये सेडिमेंटेशंस अर्थ क्रस्ट का इंडिकेशन भी दे रहा है कि अर्थ कितनी ओल्ड है, अर्थ की लॉन्ग हिस्ट्री के बारे में भी ये सजेस्ट करता है। तो उस पर जो लिविंग फॉर्म्स के जो हार्ड पार्ट्स के जो रिमेन हैं वो ये भी शो करते हैं कि फॉसिल्स कितना ओल्ड है या कितना न्यू है। डिफरेंट एज रॉक्स सेडिमेंटेड कंटेन फॉसिल्स ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म who probably died during the formation of the particular sedimented. Some of them appear similar to modern organisms। अलग अलग रॉक्स के जो सेडिमेंटेशंस है वो डिफरेंट एज की रॉक की लाइफ को शो करते हैं, रॉक की एज को शो करते हैं और उसके अलग अलग सेडिमेंटेशंस पर लाइफ जो फॉर्म है वो ये शो करता है कि उस प्रोबेबली उस टाइम पर उस तरीके का ऑर्गेनिजम्स होगा। ठीक है, और वो ये भी शो करता है कि वो
ऑर्गेनिजम्स जो हैं आज के मॉडर्न ऑर्गेनिजम्स से सिमिलर हैं कि डिफ्रेंशिएट हैं। दे रिप्रेजेंट एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स, डायनासोरस। ऐसे बहुत सारे फॉसिल्स भी मिले हुए हैं जो उस समय के डायनासोरस के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। डायनासोरस क्या है? डायनासोरस एक बहुत ज़्यादा ह्यूज बिग ऑर्गेनिजम्स का एक लाइफ फॉर्म था। तकरीबन 2.5 करोड़ टाइम पीरियड तक इनका टाइम पीरियड रहा। बहुत लंबे समय तक ये रहे हैं अर्थ पर। स्टडी ऑफ फॉसिल्स इन डिफरेंट सेडिमेंट्री layers indicate the geological period in which they extincted। फिर से वही सेम कि फॉसिल्स जो हैं किस सेडिमेंट्री लेयर्स पर हैं, अर्थ के किस सेडिमेंट्री लेयर्स पर हैं, वो उस समय का जियोलॉजिकल पीरियड्स को भी इंडिकेट करता है। और ये भी शो करता है कि वो एक टाइम पीरियड होगा जब ये एक्सटेंट होंगे, existed होंगे। ठीक है। द स्टडी शो दैट लाइफ फॉर्म वेरिएड ओवर टाइम एंड सर्टेन लाइफ फॉर्म आर रिस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन जियोलॉजिकल टाइम स्पान। और ये भी शो करता है कि वो किस समय से कितने समय तक रहे, और कुछ ऐसे लाइफ फॉर्म हैं जो एक पर्टिकुलर टाइम तक ही रहे, बहुत कम समय के लिए रहे। हैंस न्यू फॉर्म ऑफ लाइफ हैव अराइज इन डिफरेंट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ अर्थ। और सेडिमेंटेशंस और फॉसिल्स क्या शो कर रहे हैं कि डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स को डिफरेंट टाइम पीरियड में डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स को शो कर रहे हैं, और दैट एक्सप्लेन हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। मतलब फॉसिल्स की प्रेजेंस क्या शो करती है? हिस्ट्री ऑफ अर्थ। किस सेडिमेंट्री रॉक्स पर कौन सा लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फॉसिल्स मिले हैं, लाइक दैट। ठीक है स्टूडेंट। तो ये सब अर्थ की हिस्ट्री को भी शो करता है, हिस्ट्री ऑफ अर्थ। ऑल दिस इज कॉल्ड पैलिनेटोलॉजिकल एविडेंसेस। जो फॉसिल्स के बेस्ड जो अभी एविडेंसेस मिल रहे हैं, इसको क्या कहेंगे? पैलिनेटोलॉजिकल एविडेंसेस। क्या नेम है? पैलिनेटोलॉजिकल एविडेंसेस जो फॉसिल्स बेस्ड है। ठीक है, फॉसिल्स बेस्ड, इट इज कॉल्ड एज पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस। डू यू रिमेंबर हाउ द एज ऑफ फॉसिल्स आर कैलकुलेट? क्लास 10th में भी आपने रीड किया हुआ है, कार्बन डेटिंग मेथड के थ्रू फॉसिल्स की एज को कैलकुलेट किया सकता है। डू यू कलेक्ट द मेथड ऑफ रेडियो एक्टिव डेटिंग एंड द प्रिंसिपल्स बिहाइंड द प्रोसीजर? Comparatively, anatomy and morphology show similarities and difference among organisms of today and those that existed year ago। मीन्स क्या शो कर रहा है? यदि हम रेडियो एक्टिव डेटिंग मेथड्स का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका प्रिंसिपल, वो प्रोसीजर बेसिकली किस प्रिंसिपल पर वर्क कर रहा है? वो कंपैरेटिवली एनाटॉमी मीन्स और मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल फीचर और इंटरनल फीचर के अकॉर्डिंग सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस को शो करेगा जो आज के ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे, और ये बताएगा कि उनका जो एग्जिस्ट वाला टाइम पीरियड कितना था। तो बेसिकली रेडियो एक्टिव डेटिंग मेथड एंड comparative anatomy and morphology is the basic principle behind to get age of the fossils. Such similarities can be interpreted to understand whether common ancestors were shared or not. For examples, whale, bats, cheetah and human all are mammals। जैसे for examples इसमें mammals की different types दिए हैं, whale, water organisms, bat, ठीक है, चीता एंड ह्यूमन, ये सब इंक्लूड हुए हैं मैमल्स से। तो एक सबका एक कॉमन फीचर होगा क्योंकि ये मैमल्स ग्रुप में है। तो वो क्या करें? शेयर देयर सिमिलरिटीज़ इन पैटर्न ऑफ बोन्स ऑफ फोर लिम्ब। तो उनमें कुछ ना कुछ ऐसी सिमिलरिटीज़ है जो उसको ह्यूमन ग्रुप में और ह्यूमन क्लास में क्या करती है? शेयर करती है, ह्यूमन क्लास में प्लेस करती है। Through this four limb performance different functions in
these animal. इन सब का बेसिकली ये मैमल्स में क्यों रखे हैं, वेल्स, बैट्स, चीता और ह्यूमन, क्योंकि उनकी फोर लिम्ब के हिसाब से, फोर लिम्ब मतलब फोर लिम्ब एंड हाइड लिम्ब। फोर लिम्ब मीन्स जो आगे के हाथ हैं, ठीक है, वो सबका ओरिजिन तो सेम है बट दे हैव ऑल डू डिफरेंट फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल्स एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर तो उनका सेम है बट उनका फंक्शन डिफरेंट है। जैसे ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पिसल्स, मेटाकार्पिसल्स, phalanges and their four limbs hands. These animals the same structure developed along with, मतलब origin इनका क्या है, सेम है but different direction due to adopt to different needs. functions उनके different हो गए और उन्होंने उनकी अलग अलग conditions के हिसाब से, this is called as homologous. ठीक है स्टूडेंट, तो ये फोर लिम्ब का स्ट्रक्चर तो सबका सेम है बट सबके फंक्शंस अलग हैं। किस किस का एग्जांपल्स लिया है, वेल, बैट्स, चीता एंड ह्यूमन। नेक्स्ट, दिस इज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। जो होमोलोगस और इवोल्यूशन है इट इज कॉल्ड एज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। क्लियर? एंड दीज स्ट्रक्चर आर होमोलोगस। होमोलॉगी इंडिकेट्स कॉमन एंसेस्ट्री। तो इस तरीके से ये होमोलोगस स्ट्रक्चर को शो करेगा। अदर एग्जाम्पल्स आर वर्टिब्रेट्स, हार्ट और ब्रेन्स इन प्लांट ऑल्सो द थ्रोन एंड ट्रेंडल्स ऑफ द बोगनविलिया कुकुरबिटा रिप्रेजेंट होमोलॉगी। प्लांट्स में दिया हुआ है ट्रेंडल्स ऑफ बोगनविलिया एंड कुकुरबिटास, दोनों की एंसेस्ट्री सेम है, कॉमन एंसेस्ट्री, बट फंक्शंस डिफरेंट है। It is included in homologous. There are some examples given there. See, family tree of the dinosaurs and their living modern day counterparts organisms linked crocodile and birds. So dinosaurs से स्टार्टिंग में डायनासोरस थे और ये इसमें अडॉप्टिव रेडिएशंस हुआ एंड ये क्रोकोडाइल और बर्ड्स में वो हुए। आप लोगों को पता है ना कि आर्कियोप्टेरिस किस में रखा हुआ है। आर्कियोप्टेरिस ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो बर्ड्स और रेप्टाइल्स के बीच की लिंक है। इट इज़ लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड, मीन्स डायनासोरस कंसिस्ट ऑफ सम कॉमन कैरेक्टर। दिस इज रिलेटेड टू, दिस इज कॉमन इन बर्ड एंड कॉमन इन रेप्टाइल्स, और इस तरीके से ये एक लिंक ऑर्गेनिजम्स के फॉर्म पर शो होते हैं। क्या? डायनासोरस। सो ये ब्रोंकियोसॉरस है, ठीक है, स्टेगोसॉरस है, आर्कियोप्टेरिस है, क्रोकोडाइल है, फिर पैटर्नोडॉन है, फिर इसको ट्राइनोसॉरस है और ट्राइसेरेटोप्स है। तो दीज आर द डिफरेंट स्पीशीज ऑफ द डायनासोरस और ये इनमें अडेप्टिव रेडिएशन हुआ। और अडेप्टिव रेडिएशन क्या है? जिसका एक कॉमन एंसेस्टर्स हो, अकॉर्डिंग देयर सराउंडिंग्स they adopt their self according their surroundings and ultimately they just looks different their common ancestors, और ये धीरे धीरे common ancestors से इनकी looking different हो जाती है। This is adaptive radiations. So this is so today we have read what is the evidences of evolution and evolution of life forms. Now we have read homologous evolution, divergent evolution or conservant evolution or analogous organisms. Also analogous organism we will discuss in next class. Thank you student. Have a nice day.